Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss the gross anatomy of the ear. First of all, you should know the parts of the ear. This is the external ear, and this is the middle ear, and this is the internal ear. The external ear consists of two parts. This outer one, this one from here to this one is the cartilaginous portion. This is known as the pinna, and this external ear is divided into this one is the external auditory meatus, and this external auditory meatus is consist of a cartilaginous portion. This below portion is the cartilaginous, and this one is the which is covered by a bone is the bony bone. The external ear, so the external ear consists of the pinna and the external auditory meatus. The external auditory meatus consists of two parts. The outer one is the cartilaginous, and the inner one is the bony portion. And this external ear is separated from the middle ear by this membrane. This is known as the tympanic membrane. So this membrane, so we are going to discuss the external ear. This is the pinna. These are the parts of the pinna. This one is the lobule, which consists of, in the below diagram you can see it consists of only fibrofatty tissue, not the cartilage. And the cartilage in the upper part which is present is known as the elastic cartilage, not the hyaline and fibrocartilage. It is which type of cartilage? It is the elastic cartilage, and the parts are this one is the helix, and this one is the antihelix, and this is the cross of the helix. The depressions in the this is the lateral surface of the pinna. So the pinna lateral surface depression of the pinna, this depression is known as the Sanba conchi, and this is the lower depression is known as the concha. And so in this upper part, in the helix, there is in the upper part there is a tubercle, they are known as the Darwin's tubercle. And this below the Darwin's tubercle, this fossa is known as the scaphoid fossa. So these are the parts of the lateral surface of the pinna. So and the pinna in the upper part, which type of cartilage present? Elastic cartilage. In the lobule there is no cartilage. It consists of the fibrofatty tissue. This is the medial surface of the ear, and in the you can correspond these fossa and from outer surface mean this medial surface, which is also known as the cranial surface. It presents the two main structure, emancia concha and emancia triangularis. The emancia concha, this one, it corresponds the अंदर से कौन सा depression था? Concha. And the emancia triangularis, this one, और अंदर से इसका नाम क्या था? Corresponds to the triangular fossa between the crura and the antihelix. Where is crura? Where is the antihelix? This is the crux of the antihelix. ठीक है, these are the crux, and this is the triangular fossa. ठीक है, तो बाहर से इसका नाम हमारे पास क्या है? emancia triangularis fossa. तो ये दो स्ट्रक्चर में हमें मीडियल वाल में याद होने चाहिए, और ये हमें लेटरल वाल के. फिर ये इंट्रिंसिक मसल्स एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं. ये के सिर्फ नाम याद हो, ये आरिकुलर हर मसल के साथ लगेगा. ये सुपीरियर आरिकुलर है, ये पोस्टीरियर आरिकुलर है, दिस इज एंटीरियर आरिकुलर. और इन तमाम मसल्स का फंक्शन जो है वो है रोल इन द पोजीशनिंग ऑफ द आरिकल. एक तो उसको पोजीशन में रखते हैं, और दूसरा कैच द साउंड. ठीक है, अब ये इंट्रिंसिक मसल्स है, इनके सिर्फ आपको नाम आने चाहिए. और रीजनल इंसर्शन पेशेंट ना है. हेलिसिस मेजर, हेलिसिस माइनर, ट्रेगिकस, एंट्रोट्रेगिकस, ट्रांसवर्स मसल एंड द ओब्लिक मसल. यानी कि ईयर में हमारे पास पिन्ना में एक्सट्रिंसिक मसल भी हैं जो 3 हैं, और इंट्रिंसिक मसल्स भी हैं ये वाली. ठीक है, तो ब्लड सप्लाई अगर मेन आप डिटेल में ना भी जाओगे, जैसे कि इसकी ब्रांचेस जा रही हैं, परफोरेटिंग ब्रांचेस वगैरह, इतना पता ज़रूर हो कि दिस इज द कॉमन external carotid artery. So branches from the external carotid arteries are going to supply the lateral and medial wall of the ear. ठीक है, तो द क्रेनियल सरफेस, ये जो हमारे पास मीन मीडियल सरफेस, and the posterior part of the lateral surface, ये वाला
this is the lateral surface supplied by the posterior auricular branches of external carotid. So where are the posterior auricular branches? Posterior, this is the posterior, this is the external carotid artery, and this is the posterior auricular branch of the external carotid artery, which is also supplying the medial wall and the lateral wall of the ear. Okay. Anterior part of the lateral surface, this one is the lateral surface. ठीक है, ये posterior part था यहाँ, और वहाँ पे क्या था, anterior surface is supplied by the superficial temporal artery. This is the superficial temporal artery, is supplied by the superficial temporal artery. ठीक है, और मीडियल वाल तो तकरीबन सारी ही किससे, पोस्टीरियर ऑरिकुलर से सप्लाई हो रही है, लेकिन मेन आर्टरी दोनों की एक ही है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि ये सारी ब्रांचेज इन्हीं की है। वेनस ड्रेनेज इसी को वेन्स को आर्टरीज को कंपनी करती हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड और इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दिस इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन, तो ये इसी से ब्रांचेज जाके उसको वेनस कंपनी करती हैं, किसको, आर्टरीज को। लिम्फेटिक ड्रेनेज में आप यहाँ पे देखो, ये प्री ऑरिकुलर है, ये पोस्ट ऑरिकुलर है, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है तो पैरोटिड, और ये मेस्ट्रॉइड प्रोसेस की जगह है तो यहाँ पे मेस्ट्रॉइड है दिस वन, तो इसमें हमारे पास मेस्ट्रॉइड भी कह सकते हैं, मेस्ट्रॉइड लिम्फ नोड, और ये है अपर डीप, ठीक है, ये सॉरी डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो ये ईयर को इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है, किस किस की, नंबर 1 क्या है, प्री ऑरिकुलर, दिस नंबर प्री ऑरिकुलर एंड पैरोटिड भी कह सकते हो। ठीक है, पैरोटिड ये वाले सारे मिला के, और फिर मेस्ट्रॉइड, दिस वन इज द मेस्ट्रॉइड या पोस्ट ऑरिकुलर, और यहाँ पे डीप सर्वाइकल अपर पार्ट ऑफ द अपर ग्रुप। ठीक है, अब ये सुपरफिशियल नहीं, डीप सर्वाइकल lymph node, these are the lymph nodes which are going to supply the ear। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नर्व सप्लाई, ये लेटरल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस। देखो लेटरल एंड मीडियल सरफेस दोनों का लोअर पार्ट इज सप्लाइड बाय द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ठीक है, और अपर पार्ट में जब हम जाते हैं तो जो लेटरल सरफेस है उसको आती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, और जो मीडियल सरफेस है उसमें आती है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, और मिडिल पार्ट दोनों का ही वैगस नर्व की ऑरिकुलर ब्रांच से सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऑरिकुलर ब्रांच है, इसको भी ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वैगस नर्व है, और यहाँ पे भी ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ दी वैगस नर्व। दिस इज दी नर्व सप्लाइंग दी लेटरल वॉल एंड दी मिडियल वॉल। तो लेसर ऑक्सीपिटल जो है वो लेटरल वॉल में नहीं है, मिडियल में है। ठीक है, बाकी तकरीबन, और ऑरिकुलर टेम्पोरल लेटरल में है, मिडियल में नहीं, ये फर्क है। ठीक, अच्छा फिर हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे एक डायग्राम है, एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं रैम्से हंट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि फेशियल नर्व की ऑरिकुलर ब्रांच और वेगस नर्व की ऑरिकुलर ब्रांच को कंपनी करती है। फेशियल नर्व का कंपनी थी ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ दी वेगस, जो दोनों की स्किन को सप्लाई करते हैं, किसको, एंड सप्लाई दी रीजन ऑफ दी कोंका रेमेंशिया, कोंका जो मैंने आपको एक्सटर्नल ईयर के पिना के स्ट्रक्चर पढ़ा है, उनको सप्लाई करती है। तो जब फेशियल नर्व के गैंग्लियन जिसका नाम है जेनिकुलेट गैंग्लियन, उसमें हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन होता है वायरस का, तो उसमें फिर जो वेसिकल्स निकलते हैं वो कंपनी करेंगे इसमें। तो द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑरिकुलर ब्रांच एंड द फेशियल वेगस टेक प्लेस विद इन द पिटस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन पे, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो वहाँ पे हर्पीज जोस्टर ईयर में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस फेशियल नर्व की ऑरिकुलर ब्रांच की वजह से, क्योंकि ये कंपनी करती है वेगस नर्व, और वेगस नर्व जो है वो ईयर में जा रही है, उसकी ब्रांच ऑरिकुलर जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सटर्नल ऑरिकुलर मिएटस है, जिसमें ये आउटर पोर्शन जो है वो कार्टिलेजिनस है, और इनर जो है वो क्या है, बोनी पोर्शन है। कार्टिलेजिनस में हमारे पास हेयर भी मिलेंगे, स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनको कहते हैं सेरेमिनस ग्लैंड, व्हिच आर आल्सो नोन एज पाइलोसेबेशियस ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली बिकॉज दे सीक्रेट द फैट्स। ठीक है, तो और बोनी पोर्शन जो है ये वाला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये रहा, जो उसको सेपरेट करता है मिडिल ईयर कैविटी से, यहाँ पे हेयर नहीं, और सेरेमिनस ग्लैंड्स भी नहीं। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे कैनाल आपको दिखाई, दिस इज एक्सटर्नल ऑरिकुलर मिएटस, इसकी देखो यहाँ पे रूफ भी होगी, एक
फ्लोर भी होगा, फिर यहाँ पे एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल, इस तरह इसमें ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। तो इस तरीके से इसकी वाल्स भी होती है। तो फिर एक्सटर्नल ईयर को जो सप्लाई आ रही है, मेन आप नर्व कौन सी आ रही है? दिस इज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर, आप पढ़ चुके हो, दिस इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। मेन रोल किसका हुआ? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ही हुआ, जिससे ब्रांचेस आ रही हैं हमारे पास। कौन कौन सी? पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, दिस वन, ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड की। डीप ऑरिकुलर, दिस वन, ठीक है, वो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। मैक्सिलरी आर्टरी इज आल्सो ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है, ठीक है। फिर एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी डायग्राम में नहीं दिखाएगी, लेकिन वो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच। तो मैक्सिलरी आर्टरी दो ब्रांचेस दे रही है और एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच जो कि कैरोटिड से ही आ रही है, ठीक है। फिर ये नीचे नर्व सप्लाई है, हम पढ़ चुके हैं। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो मैंने आपको दिखाया भी, पीछे भी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, वेगस नर्व और दी ग्रेट ऑरिकुलर, पीछे वाली डायग्राम वाला बेहतर है, ठीक है। फिर एयर वेक्स क्या है? मैंने आपको बताया एक्सटर्नल ईयर का जो अल्टरमेटस का जो कार्टिलेजिनस पोर्शन है, उसमें जो सेरेमिनस ग्लैंड्स हैं दे सीक्रेट एयर वेक्स। एयर वेक्स का फंक्शन क्या है कि ये प्रिवेंट करती है इंजरी ऑफ दी एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस फ्रॉम वाटर डैमेज, एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है, कोई इंसेक्ट अंदर नहीं जाने देती। और अगर एक्सेस में ईयर वेक्स हो तो उसमें फिर हम उसको सिरिंजिंग के थ्रू रिमूव करते हैं। लेकिन सिरिंजिंग के थ्रू रिमूव करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखना, ये यहाँ पे आप देखें डायग्राम में, यहाँ पे वेगस नर्व है, इसकी स्टिमुलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये स्टिमुलेट होती है तो कफ रिफ्लेक्स आता है। अगर उसको नहीं कंट्रोल किया जाए तो वो ज़्यादा डेंजरस है, तो ठीक है, तो उसमें डेथ भी हो सकती है, कार्डियक इनिबिशन, क्योंकि वेगस नर्व हार्ट की सप्लाई भी करती है, पैरासिम्पैथेटिक और स्टमक वगैरह में भी जाती है। इसमें एक आल्डरमैन साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, एंशिएंट रोम में वो था, वो उसको जब भूख लगती थी तो वो कान के पीछे ठंडा पानी डालता था ताकि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता था। वेगस नर्व आल्सो सप्लाई करती थी गैस्ट्रिक को, स्टिमुलेट करती थी उसकी पेरिस्टल्सिस को, जिसकी वजह से उसको भूख लगती थी, इसलिए इसको आल्डरमैन नर्व भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आप यहाँ पे देखो कि इसके तीन कलर हैं। ये जो इनर है इट इज सॉरी ये आउटर है, आउटर जो है जो येलो कलर का ये एक्टोडर्मल है, जो बीच में ये मेसोडर्मल है, और ये जो अंदर की तरफ से जो है ये एंडोडर्मल है। सो द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, आउटर क्यूटिकल लेयर व्हिच इज एक्टोडर्मल, इनर फाइब्रल लेयर व्हिच इज मेसोडर्मल, एंड द आउटर innermost, this is the middle, and this is the innermost layer is lined by consists of the made up of the endothelium, endodermal in origin, and it is lined by the simple columnar epithelium, and the outer जो कि cuticle है, जिसको हमने कहा कि ectodermal है, it is lined by the stratified squamous non-keratinized epithelium. So ये term take origin from the three germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पार्ट्स हैं, पार्ट्स ये दिस इज द बोन जिसका हमने कहा हैंडल, अब ये मेलियस है, मेलियस का ये हैंडल है, दीज आर द मेल्युला। मेल्युला के बीच में ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पोर्शन अटैच है ये लूज होता है, जिसको हम कहते हैं पार्स फ्लैसिडा, शार्प नेल्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो हैंडल ऑफ मेलियस के साथ अटैच है ये बहुत टेंस होता है, जिसकी वजह से इसको हम पार्स टेंसा भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर लेटरल मेम्ब्रेन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कौन सी होगी? ये जो आउटर वाली पोर्शन है, ये जो ये वाली, ये जो ये है, ठीक है। अंदर देखो, अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है मीडियल सरफेस, उसमें यहाँ ये कॉन्वेक्स पॉइंट है जिसको हम कहते हैं अम्बो, ठीक है। तो ये यहाँ पे अम्बो ये वाला होगा जो कि मीडियल सरफेस की तरफ होगा। तो इस मेम्ब्रेन की हमारे पास आउटर लेटरल सरफेस भी है और मीडियल सरफेस भी है। तो आउटर जो लेटरल सरफेस है वो अब यहाँ पे देखो लेटरल सरफेस क्या है, कॉनकेव है, और अंदर वाली सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है जिसमें अम्बो की लोकेशन है, ठीक। अच्छा, फिर मीडियल सरफेस जो है इस कॉन्वेक्स जो अंदर की तरफ से है और जिसमें बल्जिंग पॉइंट को मैंने कहा अम्बो है। अब इसमें नर्व सप्लाई ऑफ दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो लेटरल पार्ट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसका एंटीरियर हाफ एंड दी पोस्टीरियर हाफ, आगे वाला और पीछे वाला।
एंटीरियर हाफ में जो आउटर सरफेस पे मीन लेटरल सरफेस पे जो नर्व सप्लाई है वो है ऑरिकुलर टेम्पोरल, और जो आउटर सरफेस की ही पोस्टीरियर पार्ट है उस पे जो है वो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस आएगी। लेकिन जो अंदर की तरफ जो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है उसमें आएगी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, तो वो बहुत अहम होता है। ठीक है, ये तो फिर फेशियल नर्व दिखाई गुजरती है, लेकिन अंदर वाले पोर्शन पे कौन सी होगी? ग्लोसोफेरिंजियल। इसीलिए जब ईयर में कोई इन्फेक्शन हो तो ग्लोसोफेरिंजियल फेरेंक्स को भी सप्लाई करती है, टंग को भी सप्लाई करती है, सॉफ्ट पैलेट को भी करती है। तो जहाँ जहाँ वो वेगस करती है सॉफ्ट पैलेट को, तो जहाँ जहाँ ये नर्व सप्लाई होंगी तो वहाँ वहाँ पेन रिफर्ड होगा। ठीक है, तो अब